So today we are looking at the next part of the brain, your central nervous system, that is the diencephalon. Again, this is derived from the prosencephalon part, the next part of the prosencephalon. उससे ये आपका derive होता है, ठीक है? It is below the cerebrum. अब ये जो diencephalon है, ये किस तरीके से? It is like a cube. It is like a cube room. एक room के जैसा structure है. It has a roof, it has a wall, and it has a floor. We can divide diencephalon into three major parts. One is the roof part. The roof part is known as epithalamus. The side walls part, ये side wall वाला part, that is thalamus. The part number 3, or which makes the floor, somewhat the lower part of the walls and mainly floor, that is called hypothalamus. Basically, this is the reference point. This thalamus makes the more than 80% part of the diencephalon. It makes more than 80% part. This is the main structure. The structure situated above it, epithalamus, below it, hypothalamus. तो जो roof बनता है वो epithalamus है, main part thalamus है, and the lower part and the some side walls are the hypothalamus. अब इसके अलग अलग functions हैं. Every part of diencephalon, every part has a separate function, entire function, and ये एक cavity को enclose करते हैं. The enclosed cavity that is called the third ventricle. So first we are looking at the epithalamus part. This is epithalamus. This lies like this. This is like this, and we are looking at this part. हम इस view से देख रहे हैं. This lies horizontally. We make it the vertically, and we are looking at it in a vertical view. So this portion, this part of this is a plate like, this is the roof like, and this part is the anterior part, and this part is the posterior part of the epithalamus. अब इस posterior part पे क्या होता है? Lots of blood vessel comes here and make a mesh network, make a choroid plexus. Choroid plexus, plexus means the network, the mesh network या एकदम जाली जैसा part, and choroid means it is consisting of the blood vessel. Everywhere, whenever you see the word choroid, it is related to the blood. The layer which contains blood vessels, that is called choroid layer. You found it in the eye, you found it in the brain. Everywhere, when you see it is choroid, this is consisting of blood vessel. So at the anterior surface, lots of blood vessel comes and they makes a mesh-like network, a sieve-like network, like you found in the glomerulus in the kidney. इस तरीके से यहाँ पे एक नेटवर्क बन जाता है. This is the plexus. This is the bunch of capillary. And what is this called? Because it is at the anterior segment, anterior, it is the layer or it is the part which contains blood vessel. That is why this is choroid. And it is a mesh network. That is why it is plexus. What is choroid plexus? Mesh network of blood vessel. This is the choroid plexus, and from this choroid plexus, from this sieve-like structure, blood gets filtered and the transparent part of the blood gets released into the central nervous system. Entire blood do not enter into the nervous system. There is a barrier. This makes the barrier. ये जो जाली जैसा structure है, this sieve-like structure makes barrier here, and through this RBC cannot cross it. In general, protein cannot cross this barrier, and blood comes into this and filter and release a fluid like water-like fluid that is called cerebrospinal fluid. यहाँ से क्या release होता है? यहाँ से blood enter होता है, then रिलीज होता है CSF. What is CSF? अभी बात करेंगे. But at the anterior surface there is a mesh capillary network, and on the posterior surface, yeah, just parallel to the posterior surface, you found some bodies, you found some stalks, you found some projection. We can draw in a TS or transfer section like this bulbs.
and in a horizontal section or in a real section like this, we can draw it this. What is this? This is the peduncle. This is the peduncle. ये वाला part. This is the peduncle या stalk of olfactory lobe. Olfactory lobe that was situated parallel to the cerebrum, that was situated adjacent to the cerebrum, which makes the olfactory sensation, which analyze the olfactory or smell sensation in your body, in your nervous system. So these are some structures called olfactory, peduncle of olfactory lobe. In the epithalamus, there is no significant neuronal structure are found. यहाँ पर कोई न्यूरनल पार्ट नहीं होता. It just make a roof, it just make a surface where this choroid plexus formed and there are some attachment found. तो इसके बारे में अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या है, there is nothing significant in it. No significant. Now we must look at CSF. What is CSF actually? This is the water-like transparent fluid which flows from the cerebrum to the last part of spinal cord. That is why we are calling it, this is cerebrospinal fluid, and it is the part of, it is a component of blood. It is released from filtered blood. That is actually the filtered blood. Almost जैसा हमारी बॉडी में प्लाज्मा होता है, ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है. बस एक डिफरेंस होता है, प्लाज्मा हैज सर्टेन प्रोटीन्स एंड दिस हैज नो और वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन. तो ये काम क्या करता है? ये वही सेम काम करेगा जो आपकी बॉडी में, एंटायर बॉडी में ब्लड करता है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ CNS, or to provide oxygen or the electrolyte balance to the all component of CNS. But blood enter क्यों नहीं कर रहा? Because brain is the essential tissue. Brain is the most vital part in your body. अगर brain में थोड़ा भी deficit आ जाएगा, कोई damage हो जाएगा, we cannot survive. The body will not function. And chances हैं, brain has certain immune components, brain has certain microbes, blood has immune component, blood has microbes or various things. So if something can enter into your brain, into your CNS along with the blood, or if any type of autoimmunity is generated from the immune component of the blood, we cannot afford it. ये सारी चीजें जो ब्लड के साथ आपके ब्रेन में आ सकती हैं, इट कैन पोटेंशियली डैमेज योर नर्वस सिस्टम. हमें ये अवॉइड करना है. दैट इज वाई जो इसका टॉप पार्ट होता है यानी एपिथैलेमस, ब्लड वेसल बस वहीं तक एंटर करती हैं. आफ्टरवर्ड्स ब्लड कैन नॉट एंटर, rather than blood release a transparent part, a transparent fluid which is devoid of immune component, which is devoid of any type of protein, which is devoid of any kind of RBC, that is called CSF. So this is cerebrospinal fluid. Plasma-like composition, but there are certain differences. Devoid of protein, while plasma has lots of protein like albumin, globulin, fibrinogen like that, but this has no protein and different level of electrolytes. It has some different concentration of same electrolyte which plasma does. Released from
anterior choroid plexus, or we can say epithalamus. Flows into entire CNS to provide nutrition to the all component of CNS. This is the next part of the diencephalon, which makes the very major portion of diencephalon. It makes around 80% or more part of the diencephalon, the walls of the diencephalon, and that is known as thalamus. Basically, thalamus is the main sensory component of the central nervous system. That means it has certain areas, it has certain depots where some sensory neuron comes from the periphery and relay their sensory impulse. They bring the information from the periphery of sensory organs like from the eyes, from the nose, from the ear, from the skin, and they pour into it, they relay into it. Then this thalamus forward these sensory information to the higher center, to the cerebrum. So that is why this is known as the principal relay station of sensory neurons. Yeah, this is the principal sensory relay station of the central nervous system. So we can write here principal relay center for sensory informations. And why it is principal relay station? Because it has certain areas to relay, it has certain area to receive some sensory information. And what are these areas called? These areas are called nuclei or nucleus. Nuclei is something, it is not that was found in the cell. It is the bundle, it is the nodal area, it is the depot area also formed from the neuronal bunch, where some neurons can relay their sensory information, yeah, from where neuron get their motor impulse. So it is like a depot, it is like a station. So there are lots of nuclei, sensory nuclei are found. Many sensory nuclei present here. Some of that, the name of the nuclei are based on their location, or they are some function. Mainly they are based on their location where they are found in the thalamus. So first is medial geniculate body or medial geniculate nucleus. Second is the lateral geniculate body or the lateral geniculate nucleus. Third is ventral posterior nuclei. That means it is situated at the ventral part, or means at the anterior part but at the posterior surface. So ventral posterior nuclei. So this is meant for hearing or auditory sensation. This is meant for vision or visual sensation, it is photosensory, and they are meant for touch or touch like sensation. Any sensation that you will get after only the touch. When you touch something, you will get these sensation, like first we say touch. And what are touch like sensation? Pain. If you prick a awl pin, if you prick a thorn in your hand, you will feel pain. The temperature feeling, something is hot or cold, you touch it, you feel it, how it is. Vibration. Taste. When you put something on tongue, the taste bud comes in contact of it, then they send the sensory impulse to the anterior posterior nuclei. So these are three primary nucleuses present in the thalamus part, and from the thalamus it relays the all sensory information to cerebrum. It receives impulse from the outside, receives and forward to the cerebrum. That is why it is called relay center. And this is the diagrammatic presentation of the real thalamus, how it looks like. This is these are two walls
left or right two walls of the thalamus, and this is the cut section of entire thalamus, which is showing anterior entire two walls. This is the anterior part, this is the posterior part. So here you can see entire thalamus is divided into certain areas or certain portions. Every portion or every area shown here is a separate nucleus. The anterior part, this segment, this is the anterior nucleus. As I said before, the name are based on their location on the thalamus. Thalamus has the anterior nucleus at the anterior most surface. Inside of it, yeah, the lateral of it, we can say this is ventral anterior, ventral lateral, ventral posterior. These are the group of nuclei which is found on the ventral surface in the body, but the respective location of these are anterior, lateral, posterior. Hence they are the name. सबसे पहला न्यूक्लियस आपने देखा एंटीरियर न्यूक्लियस, देन वेंट्रल एंटीरियर बोल सकते हैं, वेंट्रो एंटीरियर बोल सकते हैं, वेंट्रल लेटरल, वेंट्रल पोस्टीरियर एंड द लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियाई. इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन कि हम इसको 2D में कैसे इमेजिन करेंगे, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर. इट इज नॉट 3D, इट इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स 3D. द रिलेशंस आर कि एक अगर कोई चीज आपके एंटीरियर सरफेस पे है बट फिर भी ये इसके बिहाइंड है, तो हम इसको बोल देंगे इट इज पोस्टीरियर टू इट, इट इज डॉर्सल टू इट, ऑल्दो दोनों ही एंटीरियर सरफेस पे हैं, दोनों ही वेंट्रल सरफेस पे हैं. ये जो लोकेशंस हैं ये रिलेटिव होती है. दैट दिस मेक्स दिस चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड ओनली, द लोकेशन, द इमेजिनेशन. यहां हम उसी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर आप इस तरीके से ये जो पूरा थैलेमस था इसका आप ऐसे कट सेक्शन देखोगे, दिस इज द थैलेमस एंड इफ आई कट इट लाइक दिस, पेन से कट कर देते हैं तो ऐसे कट करते हैं. देन जब हम सामने से देखेंगे तो हमें दोनों वॉल्स का कट सेक्शन दिखेगा. इसके ऊपर यहां पे इस तरीके से एपिथैलेमस था, इसके नीचे इस तरीके से यहां पे हाइपोथैलेमस आ जाएगा. एंड ये जो सेंटर में कैविटी एनक्लोज कर रहे हैं, जो भी आपको 2D में कट सेक्शन के फॉर्म में दिख रही है, ये बेसिकली एक स्फीयर शेप ऐसे पूरी यहां पे लाइक दिस जगह यहां पे एक पूरी कैविटी होगी. द कैविटी इज कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल. तो ये वाला जो आपका पार्ट है ये क्या है, ये आपका वही थर्ड वेंट्रिकल है जो डायनकेफेलॉन की कैविटी है. ये अलग अलग न्यूक्लियसेस हैं आपके जो सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं. एंड वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल कि इंडिविजुअल न्यूक्लियाई क्या काम करता है. हमारे सिलेबस के लिए या इवन द लेवल ऑफ ओलंपियाड, अब जो भी एग्जाम देना चाहेंगे, ये 3 वो मेन न्यूक्लियाई हैं जो सेंसेशंस आपकी बॉडी में पहुंचाते हैं. बिकॉज हियरिंग, विजन एंड टच, यही वो सेंसेशंस होती हैं जो प्राइमरी सेंसेशंस होती हैं जो हमारे सिलेबस में या यूजी लेवल पे हम पढ़ते हैं. अदरवाइज every part of this nucleus, even within the nucleus, we have very different function. पर इतनी डिटेल में जाने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है. दैट इज आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल, बट दिस इज द रियल कट सेक्शन ऑफ द थैलेमस. और वी कैन सिंपली ड्रॉ दिस टू मेमोराइज इट लाइक दिस. दिस इज द वॉल ऑफ थैलेमस, द फर्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी, थर्ड बॉडी. First body, third body, second body. This is medial geniculate body. This is lateral geniculate body, and this is ventral posterior nuclei. This is sensory for hearing or auditory impulse. This is sensory for vision. And this is sensory for touch and touch-like sensation. And the cavity in front of it, या cavity in between wall, it is called third ventricle. This is the most basic drawing of your thalamus for the memorize it. To memorize it, हम यहाँ से बहुत अच्छे से इसको याद रख सकते हैं. But these are the fact. These are two geniculate bodies. These are the anterior posterior nuclei and some other nuclei. तो ये पूरा entire आपका thalamus है, which is I believe the most complicated part to imagine in the entire CNS, because ये एक तरीके से आप पूरे complex 3D को 2D में imagine कर रहे हो और इसको draw करना, even memorize करना, दोनों ही थोड़ा difficult है. तो we are putting much stress on it as compared to other part. तो again I am revising it. Thalamus is the principal relay station because it receives sensation from the periphery, from the sensory organs like ear, nose, tongue
likewise, and transfer this sensation to the cerebrum for the according motor action. And these are some nuclei of it. So in continuation of diencephalon, now we are discussing the hypothalamus. Hypothalamus makes the floor of diencephalon cavity. जो diencephalon की रूफ थी वो बनाई थी एपिथैलेमस ने, जो साइड की वॉल्स का मेजर पार्ट था वो बनाया था थैलेमस ने. नाउ lower 1/3 of the wall of diencephalon and the floor of diencephalon is made up of hypothalamus. अगर हम यहाँ पे अगेन diencephalon का डायग्राम बनाना इस तरीके से अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, लाइक ये वॉल्स हैं और ये इसका रूफ वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट था एपिथैलेमस, ये वाला पार्ट था थैलेमस, एंड दिस पर्पल कलर पार्ट जो यहाँ पे बनाया है दिस इज द हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस क्या है? डायनकेफेलॉन का न्यूरॉन से बना हुआ स्ट्रक्चर है विच इज मोस्टली मेड अप ऑफ ग्रे मैटर न्यूरॉन. द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज जो हाइपोथैलेमस का मेजर पोर्शन है आपका वो ग्रे मैटर से बना होता है या ग्रे न्यूरॉन से बना होता है. मोस्टली पोर्शन इसी से बना होता है. एंड हाइपोथैलेमस क्या है? बेसिकली जो हमारा मन होता है, जिसको हम बोलते हैं हमारी विशेस होती हैं, हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं, हमारा एनालिटिकल पार्ट होता है, वो सारा का सारा रेगुलेट हाइपोथैलेमस करता है. और क्यों करता है हाइपोथैलेमस रेगुलेट? बिकॉज हाइपोथैलेमस हैज द मेजर कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में होने वाली सारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, उनमें इंफ्लुएंस डालता है और किसी और के थ्रू, ब्रेन के किसी और इनवॉलंटरी कंट्रोल के थ्रू अपना एक्शन परफॉर्म करवाता है. तो जो भी चीजें हम करते हैं, लाइक वी आर विशिंग फॉर डिजायर, हमारी लर्निंग, हमारी इंटेलेक्चुअल नॉलेज, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा रिफ्लेक्स, और आपको टच सेंसेशन, पेन सेंसेशन, टेम्परेचर के लिए सेंसेशन, आपके जितने भी इमोशंस होते हैं, इमोशन के अकॉर्डिंग आपका जो बिहेवियर होता क्या होना चाहिए. तो बेसिकली इफ यू आर फीलिंग सॉरो, if you are feeling happy, if you are feeling some libido, if you are feeling some sexual attraction to the opposite sex or anything else, तो वो जो सारा आपका रेगुलेशन होगा, जिसको भी हम एक लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं हमारा मन जो है, तो मन क्या है? दिस इज द मन, दिस इज द सेंटर ऑफ एनी डिजायर और एनी इमोशन. तो ये आपका होता है हाइपोथैलेमस. तो नाउ वी कैन से कि दिस इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर न्यूरॉन एंड दिस इज द मेजर रेगुलेटरी सेंटर ऑफ एएनएस. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेजर रेगुलेटरी पार्ट हाइपोथैलेमस होता है. एंड इट हैज मैनी न्यूक्लियाइज फॉर इनवॉलंटरी रेगुलेशन. या तो ये डायरेक्टली रेगुलेट करेगा या फिर ये किसी के थ्रू इन्फ्लुएंस करके रेगुलेट कर पाएगा. एंड हाइपोथैलेमस एक ऐसा पोर्शन है जो नर्वस कंट्रोल प्लस एंडोक्रिनल कंट्रोल दोनों ही रेगुलेट करता है या दोनों ही एग्जिबिट करता है. अभी हम बात कर रहे हैं नर्वस कंट्रोल की. इन अ व्हाइल वी विल डिस्कस द एंडोक्रिनल कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस आल्सो. बट उससे पहले हम यहां समझते हैं कि कौन कौन सी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है जिन्हें ये रेगुलेट डायरेक्टली करता है. तो here we can write like desire, any kind of emotion, and emotion includes some major emotions जो human feel करते हैं: sorrow, joy, libido. Libido means the sexual attraction towards anything या towards any opposite sex. क्यूमुलेटिवली इसे हम कहते हैं लिबिडो. लिबिडो इज अ डिजायर टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स, दिस इज कॉल्ड लिबिडो. वो भी रेगुलेट होती है आपकी हाइपोथैलेमस से. अब हाइपोथैलेमस जो इमोशन फील करता है, इसका जो मोटर एक्शन है, लाइक इफ यू आर फीलिंग सॉरो और अगर आपका रेस्पॉन्स क्राइंग के फॉर्म में आता है तो क्राइंग इज अ वॉलंटरी प्रोसेस. इधर यू कैन क्राई और यू कैन स्टॉप इट बाय योरसेल्फ. तो वो जो आपको रेगुलेट होता है वो एक वॉलंटरी मूवमेंट है. हाइपोथैलेमस में इमोशन की लर्निंग के बाद में, इमोशन की एनालिसिस के बाद में जो उसका एक्सप्रेशन होना है, जो मोटर एक्सप्रेशन होना है, वो होता है सेरेब्रम की हेल्प से. तो यहां ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि जो इमोशन फील होते हैं, जो इमोशन हम सेंस करते हैं, वो करते हैं
हैं हाइपोथैलेमस की वजह से, बट उस इमोशन के लिए जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, जो मोटर एक्सप्रेशंस हमारे चेहरे पे आते हैं या पूरी बॉडी लैंग्वेज में आते हैं, दैट आर बिकॉज ऑफ द सेरेब्रम। तो ये आपका हाइपोथैलेमस का पार्ट है। और हाइपोथैलेमस में दो तरह के इस तरीके से आपके पास में न्यूरॉन अवेलेबल है। दोनों ही न्यूरॉन मोस्टली ग्रे मैटर होते हैं, ग्रे न्यूरॉन्स होते हैं, बट दो तरह के होते हैं। एक न्यूरॉन होते हैं जिनकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है, वो कहलाते हैं लॉन्ग हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। तो यहां पे हम देखें तो दो तरह के न्यूरॉन है, एक आपके न्यूरॉन है लॉन्ग न्यूरॉन्स और एक आपके न्यूरॉन है शॉर्ट न्यूरॉन। इनका रोल क्या है ये अभी समझ में आएगा जब हम एंडोक्राइन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, और ये वो एक्शंस हैं जो हाइपोथैलेमस न्यूरल कंट्रोल के थ्रू रेगुलेट करता है। So this is the endocrinal regulation, the structural control of the hypothalamus. यहां जो आप ये पर्पल लेआउट देख पा रहे हो, दिस इज डॉटेड लाइन, ये डिनोट करता है आपके हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस में जो हमने बोला था कि बहुत सारे न्यूक्लियाइज होते हैं, तो ये जो बोल्ड डॉट्स हैं दीज आर न्यूक्लियाइज, और इनसे जो एक्सटेंशंस नीचे वायरिंग के फॉर्म में आ रहे हैं दीज आर न्यूरॉन्स। तो यहां आपको दिख रहा है ये न्यूरॉन जो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं और पूरा यहां नीचे तक आ रहे हैं, दीज आर लॉन्ग हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। और ये जो न्यूरॉन्स है जो यहां तक शॉर्ट लेंथ में खत्म हो जाते हैं, दीज आर शॉर्ट हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। तो ये शॉर्ट हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है और लॉन्ग हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हाइपोथैलेमस है वो एक ब्रेन का पार्ट है या वो एक न्यूरोनल स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ एंडोक्रिनल कंट्रोल भी होता है। तो न्यूरोनल जो कंट्रोल होता है वो तो डायरेक्टली ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की हेल्प से करता है, बट एंडोक्रिनल कंट्रोल इसको शो करने के लिए ये क्या करता है, ये जो आपका पूरा पर्पल वाला हाइपोथैलेमस है, ये जो पूरी कैविटी यहां पे बनी हुई है, ये इसके नीचे सिचुएटेड एक नॉन न्यूरोनल पार्ट से या फिर आप बोल सकते हो एक एंडोक्रिनल पार्ट से अटैचमेंट या एक जंक्शन बनाता है। और वो जो जंक्शन है, किसी भी टाइप का जंक्शन अगर आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड फाइसिस ज़ीनोट्स जंक्शन। तो ये वो आपका यहां पे, अगर मैं यहां पे ग्रीन कलर से आपको शो करके दिखाऊं तो ये वाला वो वाला पार्ट है जो जंक्शन वाला पार्ट है। यहां पे आपका हाइपोथैलेमस एक नॉन न्यूरोनल पार्ट से जंक्शन शो करता है, एक ऐसी ग्लैंड जो एंडोक्रिनल कंट्रोल करती है पूरी बॉडी का, एंड ऑलरेडी यू नो द ग्लैंड इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जंक्शन है और ग्लैंड उसके नीचे सिचुएटेड है, इसीलिए पिट्यूटरी का सिनोनिम है, पिट्यूटरी का अदर नेम हम क्या बोल देते हैं, हाइपोफाइजियल ग्लैंड या हाइपोफाइसिस, यानी सिचुएटेड बिलो द जंक्शन। तो पिट्यूटरी को हम बोल देते हैं हाइपोफाइसिस। अब ये जो पिट्यूटरी है इसकी दो लोब्स होती हैं, एक एंटीरियर लोब जो आपको ऐसे बॉडी में फ्रंट, अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड आपके यहाँ पे स्कल में प्लेस है तो उसका जो एंटीरियर पार्ट होगा यानी वेंट्रल सरफेस वाला पार्ट होगा, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी जो व्हाइट कलर से आपने शो की है। और ऑन द अदर साइड, ऑन द पोस्टीरियर साइड आपको मिलेगी ये जो येलो कलर से शो की है, दैट इज पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एक मिडिल लोब भी होती है जो ह्यूमन में इतना ज्यादा डेवलप नहीं होती है, डीजनरेट हो जाती है, तो हम यहां उसकी बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से जो न्यूरॉन्स आते हैं, अब यहां आप देखो कि जो लॉन्ग न्यूरॉन्स आए हाइपोथैलेमस से वो इस पूरे जंक्शन से, और ये जो जंक्शन है ये स्टॉक के फॉर्म में, इस तरीके से ये स्टॉक है पूरा, इस स्टॉक के फॉर्म में जो जंक्शन है इसको आप बोल सकते हो जंक्शन, या फिर आप इसको बोल सकते हो इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या है? इनफंडिबुलम इज अ नैरो स्ट्रक्चर। इनफंडिबुलम सेम फैलोपियन ट्यूब में भी होता है, इनफंडिबुलम कई जगह होता है। इनफंडिबुलम क्या होता है? एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर जो एक नैरो एक्सटेंशन या जंक्शन को शो करता है। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में जो जंक्शन होता है हम उसे फाइसिस बोल सकते हैं, इनफंडिबुलम बोल सकते हैं, सिंपल जंक्शन बोल सकते हैं। तो इस इनफंडिबुलम के थ्रू जो लॉन्ग न्यूरॉन्स आते हैं पोस्टीरियर लोब में जाते हैं और यहां पे कंडेंस हो जाते हैं, यानी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का आर्किटेक्चर है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो किससे बना है? वो एक्चुअली हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से ही बना है। तो लॉन्ग न्यूरॉन्स रन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस वाया इनफंडिबुलम एंड गोज अप टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड फॉर्म द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब क्या है? ये पिट्यूटरी का ऐसा पार्ट है जो न्यूरॉन से मिलकर बना है, यानी ये हाइपोफाइसिस का पिट्यूटरी का वो पार्ट है जो न्यूरॉन से मिलकर बना है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट न्यूरो हाइपोफाइसिस और न्यूरोनल पार्ट ऑफ पिट्यूटरी और द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सिंपल। नाउ वी कैन सी हियर कि यहां पे ये शॉर्ट न्यूरॉन्स हैं। अब शॉर्ट न्यूरॉन क्या करते हैं? शॉर्ट न्यूरॉन
रन करते हैं हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम तक आते हैं, बट इनफंडिबुलम में आपके पास यहां पे एक ब्लड वेसल्स का पोर्टल प्रेजेंट होता है। पोर्टल क्या होता है, यानी जो हाइपोथैलेमस का ब्लड लेकर पिट्यूटरी तक आता है। और अगर ब्लड का फ्लो, कोई भी ऐसा सिस्टम या कोई भी ऐसी वेन या ऐसी आर्टरी या कोई भी एक ऐसा ब्लड वेसल जो एक ऑर्गन का ब्लड दूसरे ऑर्गन में लेकर जाती है अदर देन हार्ट, दैट इज कॉल्ड पोर्टल सिस्टम। तो यहां पे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में एक पोर्टल सिस्टम है, तो इसको हमने कहा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस से ब्लड को पिट्यूटरी में लेके आएगा। अब जो शॉर्ट न्यूरॉन है ये आते हैं, एक्सटेंड होते हैं अप टू दिस पोर्टल सिस्टम, यानी जो शॉर्ट न्यूरॉन है इनसे जो आने वाले हार्मोन्स हैं, इनके सिक्रीशन है, ये क्या करेंगे, पोर्टल सिस्टम में डाल देंगे। पोर्टल सिस्टम में ब्लड के साथ में ये जो सिक्रीशन या केमिकल्स या हार्मोन्स हैं ये पहुंच जाएंगे इस एंटीरियर पार्ट में। और ये जो एंटीरियर पार्ट है जो व्हाइट कलर से आपने यहाँ पे शो किया है, दैट इज एक्चुअली एंडोक्रिनल पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। ये पिट्यूटरी का खुद का स्ट्रक्चर है। ये तो हाइपोथैलेमस न्यूरॉन से बना था, ये पिट्यूटरी का खुद का स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंडोक्रिनल टिश्यू या एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनो मींस द ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी या ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ हाइपोफाइसिस। तो ये है एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस या एंडोक्रिनल पार्ट ऑफ पिट्यूटरी या हाइपोफाइसिस। तो इस तरीके से आपके न्यूरॉन्स हैं, इस तरीके से यहां पे रन करते हैं। अब आपको पता है कि जो पिट्यूटरी है इससे कई सारे रेगुलेटरी हार्मोन्स निकलते हैं, और वो कई सारे रेगुलेटरी हार्मोन आपकी बॉडी में ऑलमोस्ट हर ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक एड्रीनल ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करेंगे, पैनक्रियास को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, गोनेड्स को स्टिमुलेट करेंगे। तो इसीलिए पिट्यूटरी को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, बिकॉज पिट्यूटरी रेगुलेट्स द ऑल अदर ग्लैंड्स ऑफ बॉडी। बट यहां आपको समझ आ रहा है कि हाइपोथैलेमस से आने वाले न्यूरॉन खुद पिट्यूटरी को रेगुलेट करते हैं। दैट इज व्हाई हाइपोथैलेमस इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो यहां पे हम हाइपोथैलेमस को इसीलिए क्या बोल सकते हैं, मास्टर ऑफ master gland, because it regulates the master gland, that is pituitary, and master gland is the pituitary। तो इस तरीके से आपका ये पूरा स्ट्रक्चर यहां पे डेवलप होता है। नाउ क्वेश्चन इज हाइपोथैलेमस में हार्मोन कौन से बनते हैं? तो हाइपोथैलेमस में 3 तरह के हार्मोन बनते हैं। 3 तरह के हार्मोन्स का क्या मतलब है? एक ऐसे 2 तरह के हार्मोन वो है जो एंटीरियर पिट्यूटरी तक आएंगे, यानी कुछ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे, दोज आर कॉल्ड स्टिमुलेटरी हार्मोन। और उनके स्टिमुलेशन के बाद में पिट्यूटरी कोई सर्टेन हार्मोन रिलीज करेगी। लाइक वी नो गोनेडोट्रोपिन्स एफएसएच एंड एलएच रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, गोनेड को स्टिमुलेट करते हैं। बट इन गोनेडोट्रोपिन को रिलीज को स्टिमुलेट करवाने वाला हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस से आता है, दैट इज नोन एज gonadotropin releasing hormone। तो this is an example of stimulatory hormone released from the hypothalamus, goes into anterior pituitary via this portal system and stimulate the pituitary to release gonadotropins। तो ये हो गया एक रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन, तो यहां से हाइपोथैलेमस से आता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये अगेन एक स्टिमुलेटरी हार्मोन हो गया। बट इन अपोजिट टू दिस हाइपोथैलेमस से कुछ इनहिबिटरी हार्मोन भी आते हैं, जैसे आपने बोला सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन का दूसरा नाम क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। अगर हमें एक अनएप्रोप्रिएट ग्रोथ नहीं करवानी है, ओवर ग्रोथ नहीं करवानी है, समहाउ हमें ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम करना है, तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन नीचे रिलीज होता है जो पिट्यूटरी तक आता है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी पेप्टाइड, क्योंकि वो प्रोटीन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, और वी कैन कॉल इट सोमेटोट्रोपिन। तो ये 2 क्लास के हार्मोन थे, वन इज स्टिमुलेटरी, सेकंड इज इनहिबिटरी, जो एंटीरियर पिट्यूटरी तक आते हैं। एंड 2 स्पेसिफिक हार्मोन आपके पास यहां पे होते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, यानी कि हाइपोथैलेमस में बनते हैं, न्यूरॉन के थ्रू यहां पर आते हैं और यहीं स्टोर हो जाते हैं। दोज हार्मोन्स आर, वन इज ऑक्सीटोसिन, सेकंड इज एडीएच और वैसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। ये दोनों रिलीज होते हैं और अपना रिस्पेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये एंडोक्राइन सिस्टम में हमने ऑलरेडी समझा हुआ है कि इन हार्मोन्स का काम क्या है। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर है जिससे कि हाइपोथैलेमस का पूरा डेजिग्नेशन हमको समझ में आता है कि क्यों हम इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, कितने तरह के इसमें टिश्यूज होते हैं। ये एक एंडोक्राइन पार्ट भी है, ये एक न्यूरोनल पार्ट भी है। न्यूरोनल पार्ट में ग्रे मैटर मोस्टली न्यूरॉन का बना होता है, और न्यूरॉन इस तरीके से इसको डिजाइन करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी का, या तो स्ट्रक्चर बनाएंगे या उसको स्टिमुलेट करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हाइपोथैलेमस के पास में और होता है जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे विजन के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है? सपोज ये जो बैकग्राउंड में मैंने यहां पे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है, लेट्स अज्यूम दिस इज हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है।
तो अब क्या होता है, जो भी आपका विजुअल कॉर्टेक्स होता है जो कि मिड ब्रेन में सिचुएटेड होता है, या जो भी आपके कॉलिकोलाइज होते हैं जो मिड ब्रेन में सिचुएटेड होते हैं, जो विजन के लिए आपको सेंसेशन देते हैं या सेंस करते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां से आपकी ऑप्टिक नर्व आती है। या फिर हम इसको इस तरीके से समझें कि आई से हमारे पास ऑप्टिक नर्व आती है और ऑप्टिक नर्व आके आपके सेरेब्रम में जो विजुअल कॉर्टेक्स है, विजुअल सेंटर है, वहां पर जाएगी। बट सपोज दिस इज योर राइट आई एंड दिस इज लेफ्ट आई। यहां से दोनों तरफ से ऑप्टिक नर्व आएगी, जैसे यहां पे इस तरीके से ऑप्टिक नर्व आई, ये ऑप्टिक नर्व आ रही है, ये इसके फाइबर्स है। इधर से ये ऑप्टिक नर्व आ रही है। आई एम चेंजिंग द कलर बिकॉज एक स्पेसिफिक रीजन है, अभी समझ में आएगा। राइट आई से ऑप्टिक नर्व आ रही है, इस तरीके से ऑप्टिक नर्व आ गई। ये ग्रीन कलर के फाइबर राइट साइड को शो कर रहे हैं। अब क्या होता है, हाइपोथैलेमस के सामने जैसे ये फाइबर पहुंचते हैं, ये आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं। होना क्या चाहिए था, राइट वाले फाइबर राइट में चले जाते, लेफ्ट वाले फाइबर लेफ्ट में चले जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट होता क्या है, जो राइट वाले फाइबर होते हैं, इसका मोस्ट ऑफ द अमाउंट क्रॉस करके हाइपोथैलेमस के सामने, बिल्कुल जैसे ये हाइपोथैलेमस है तो बिल्कुल इसके फ्रंट में, इसके बिल्कुल ऑपोजिटली क्रॉस करके यहां चले जाते हैं, इस साइड चले जाते हैं मोस्टली। और कुछ फाइबर सेम साइड रहते हैं, यानी इप्सिलेटरल रहते हैं। ये अपोजिट साइड जाना इज कॉल्ड कॉन्ट्रालेटरल, सेम साइड रहना इज कॉल्ड इप्सिलेटरल। तो कुछ फाइबर तो इप्सिलेटरल रहे, कुछ फाइबर क्रॉस करके यहां चले गए। सिमिलरली लेफ्ट के साथ भी होता है कि मोस्ट ऑफ द फाइबर तो क्रॉस करके आपके यहां चले गए, इस तरीके से इधर चले गए, और कुछ फाइबर आपके यही हैं अभी भी, इस तरीके से। तो अब आपको क्या बात समझ में आती है कि जो सेंसेशन लेफ्ट आई से आती है उसका मेजर अमाउंट राइट साइड चला जाता है, जो सेंसेशन आपके राइट आई से आती है उसका मेजर अमाउंट लेफ्ट साइड में चला जाता है। बट थोड़े बहुत चीजें, थोड़ी बहुत सेंसेशन सेम साइड भी रहती है। तो वाई दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमें पता है हमारी जो दोनों आईज हैं वो सेम चीज देखती हैं। बोथ आईज आर सीइंग सेम थिंग एट अ टाइम। हमें यह नहीं होता कि लेफ्ट से अलग दिख रहा है, राइट से अलग दिख रहा है। इस विजन को कहते हैं बाइनोकुलर विजन। तो बाइनोकुलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज क्या है, दिस क्रॉसिंग ओवर, कि जो राइट वाले फाइबर लेफ्ट में चले जाते हैं प्लस लेफ्ट वाले फाइबर राइट में चले जाते हैं, और थोड़े बहुत फाइबर सेम साइड के सेम साइड रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो दोनों आईज की जो विजुअल इमेज बनती है वो दोनों ही मर्ज होती हैं, मर्ज होकर सुपर इंपोज होती हैं, और एक क्रिस्टल क्लियर इमेज हमको दिखती है, जिसमें हम एक कॉमन इमेज शेयर करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, उसकी डेप्थ भी परसीव कर पाते हैं। तो 3D विजन के लिए, डेप्थ परसीव करने के लिए और बाइनोकुलर विजन के लिए ये एक ऑप्टिक नर्व का जो क्रॉसिंग ओवर है ये इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये कहलाता है ऑप्टिक क्याज्मा। ऑप्टिक क्याज्मा इज द क्रॉसिंग ओवर ऑफ बोथ नर्व, लेफ्ट और राइट नर्व, जो इन फ्रंट ऑफ हाइपोथैलेमस आपके डेवलप होती है और एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाती है। ये कहलाता है ऑप्टिक क्याज्मा, और ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बाइनोकुलर विजन। और बाइनोकुलर विजन का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में, बोथ आईज आर सीइंग सेम थिंग एट अ सेम टाइम। दोनों आंखों से आपको अलग अलग नहीं दिखता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑप्टिक क्याज्मा। यहां से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपके पास निकल के आ सकता है अगर आप खुद से सोचोगे। अदरवाइज क्या कॉन्सेप्ट है, अगर ये ऑप्टिक क्याज्मा है, सपोज दिस इज ऑप्टिक क्याज्मा, अगर ऑप्टिक क्याज्मा के पहले यानी अबव द ऑप्टिक क्याज्मा अगर कोई न्यूरॉन डैमेज होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, तो जो विजन लॉस होगा, अगर राइट ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है तो राइट साइड का विजन लॉस होगा, बिकॉज ऑप्टिक क्याज्मा से पहले राइट नर्व राइट साइड थी। बट अगर यही लॉस, अगर आप बोलते हो कि ऑप्टिक क्याज्मा के नीचे राइट साइड लॉस हो गया, तो जो आपका मेजर विजन लॉस होगा वो लेफ्ट वाला होगा, बिकॉज एक क्रॉसिंग ओवर हो गया। सिमिलरली अगर ऑप्टिक क्याज्मा के पहले लेफ्ट ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो लेफ्ट साइड के सेंसेशंस लॉस होंगी। बट ऑप्टिक क्याज्मा के बाद अगर लेफ्ट साइड ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है तो उसमें मेजर फाइबर राइट साइड के थे, तो आपकी राइट साइड डैमेज होगी। तो इस तरीके से ऑप्टिक क्याज्मा में और फर्दर पैथोलॉजीज में हम इसको समझ सकते हैं, या कंडीशंस में हम इसको समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन, ये ऑप्टिक क्याज्मा वाला या फिर नर्व डैमेज, ऑप्टिक क्याज्मा वाला क्वेश्चन तो कॉमन है, बट जो नर्व डैमेज वाला क्वेश्चन है ये नीट में जनरली नहीं देखने को मिलता है। बट अगर आप कोई केवीपीवाई टाइप से या फिर ओलंपिया टाइप का कोई अच्छी क्वालिटी लेवल का एग्जाम आप दोगे जिसमें आप एक लर्निंग डिमांड करते हैं, वहां पे आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है कि ऑप्टिक क्याज्मा से पहले अगर डैमेज हुआ तो इप्सिलेटरल यानी कि सेम साइड का विजन लॉस होगा। अगर ऑप्टिक क्याज्मा के नीचे कोई डैमेज होता है तो कॉन्ट्रालेटरल यानी कि ऑपोजिट साइड का विजन लॉस होगा।
तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था और ये आपका पूरा हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर और हाइपोथैलेमस के फंक्शन थे। और जैसा हमने देखा कि हाइपोथैलेमस क्या प्रेफर करता है, हाइपोथैलेमस क्या रेगुलेट करता है, ऑटोनोमिक कंट्रोल का मेजर रेगुलेशन हाइपोथैलेमस के पास होता है। और ये बहुत मतलब लिमिटेड फंक्शन मैंने आपको यहां पर बताए हैं, पर इनवॉलंटरी फंक्शन जितने भी होते हैं, लाइक लर्निंग, लाइक अंडरस्टैंडिंग, लाइक एनालिसिस, फीलिंग, इमोशन, डिजायर और बाकी फीलिंग ऑफ टेम्परेचर, टच, पेन, ये सारी सेंसेशन आपको हाइपोथैलेमस में देखने को मिलती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी सेंसरी सेंसेशन थी जो हमने एपिथैलेमस में जिनके लिए न्यूक्लियाई देखे थे, उन सेंसेशन की जो लर्निंग होती है, जो आपको पता लगता है कि अगर दुख होता है तो हमें क्या फील होता है, अगर खुशी होती है तो हमें क्या फील होता है, पेन होता है तो हमें क्या फील होता है, तो वो जो फीलिंग है, वो जो चीजें हैं, वो आपको हाइपोथैलेमस से डेवलप होती है। एंड हाइपोथैलेमस क्या है? आपका मन है। जैसे हम बोलते हैं ना, हार्ट इज मन, हार्ट का काम सिर्फ ब्लड पंप करना, हार्ट इसके अलावा और कोई काम नहीं करता है। जितनी भी फीलिंग, इमोशन, डिजायर, सारी की सारी आपकी स्टिमुलेटरी सेंसेशन जो भी आपके मेंटल बिहेवियर को डिसाइड करती है कि आप मेंटली कैसा बिहेव करोगे, आप किसी चीज के बारे में क्या सोचोगे, आप मेंटली किसी चीज के बारे में क्या रिस्पॉन्स दोगे। अगर कोई आपसे हैंडशेक करता है तो आप उसे हैंडशेक करोगे, आप उसको थप्पड़ मार दोगे, या फिर आप उसे हैंडशेक करोगे। आप लोगों से मिलना पसंद करते हो, आप चॉइसेस बनाते हो। तो ये जो भी चीजें आप करते हो, सारी की सारी चीजें आप इस हाइपोथैलेमस की वजह से करते हो। दैट इज व्हाई हाइपोथैलेमस हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नर्वस सिस्टम एज वेल एज द एंडोक्रिनल रेगुलेशन जो हमने यहां देखा, ये तो होता ही है। तो दिस कंप्लीट्स योर डायनकेफेलॉन वाला पार्ट, कि डायनकेफेलॉन में थैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड देन हाइपोथैलेमस, ये पूरा डायनकेफेलॉन मिलके आपका पूरी बॉडी का रेगुलेशन करता है। बट अगेन, आपकी बॉडी में सेरेब्रम के नीचे जितने भी न्यूरोनल कंट्रोल्स हैं, वो सारे के सारे इनवॉलंटरी हैं। वॉलंटरी कंट्रोल सिर्फ आपका सेरेब्रम तक लिमिटेड रहता है। और वॉलंटरी कंट्रोल का रेफरेंस यहां देने का रीजन अभी क्या था? बिकॉज जितने भी इमोशन या जितनी भी चीजें हम यहां हाइपोथैलेमस में फील करते हैं, उनके अकॉर्डिंग मोटर रिस्पॉन्स क्या आना है, वो डिसाइड आपका सेरेब्रम ही करता है। तो दिस फाइनली कंप्लीट्स योर द हाइपोथैलेमस एंड द डायनकेफेलॉन पार्ट, एंड दिस इज द ऑप्टिक कियास्मा, जिसमें आपका बाइनोकुलर विजन इंपॉर्टेंट होता है।